Welcome back. Hope you all are fine. And so far, we have done the inductive effects and its application in our previous video. And now we will do some question that will really help you to cope up with the problem related with the topic. Right? And I request you all to kindly watch the video of inductive effects before attempting the question that will be available in this video. And link is available in the description box. Hope video will be helpful for you people. Okay, so the first question of the practice series is which of the following will give faster substitution reaction? And the options are methyl chloride, butyl chloride, ethyl chloride, and propyl chloride. We have four options and we have to give the answer out of the four. Which one will give faster substitution reaction? तो थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि what are the substitution reaction. आपको मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा हिंट मिलेगा और काम will be very easy, right? So substitution reaction actually works on the saturated hydrocarbon. और अगर हम general से example ले, for example methyl chloride, if I have to substitute the chloride atom with a hydroxide or the CN or anything else, right? So what the basic mechanism is behind it, the substitution reaction. Actually, this chloride will remove, and in place of the chloride, the other substituent will be coming. This is the main mechanism, the basic mechanism. So first the thing is this: the chloride atom will be removed, right? And after removing the chloride atom, we people will get the methyl carbocation, and this is the main thing we have to keep it in mind. The formation of the carbocation. एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फास्टर होने का जो मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ही है. इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. सो नाउ फोकस ऑन दिस. इफ यू विल वर्क ऑन द फर्स्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ से जो भी हमें मिलेगा वही कार्बोकेटाइन, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन. एंड इन सेकेंड केस वी पीपल विल गेट आफ्टर रिमूविंग ऑफ द क्लोराइड एटम हमें मिलेगा ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, राइट? एंड यू नो वेरी वेल कि भाई जैसे जैसे हमें कार्बोकेटाइन मिल जाएगा द सब्स्टिट्यूशन विल बी वेरी इजी. द मेन प्रॉब्लम इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड द कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल. As stable the carbocation, the faster reaction will take place. So we have to work on that, right? And in third case, we people will get the ethyl carbocation, and in the last case, we people will get the propyl carbocation. Now, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि which carbocation is more stable and why and how. Right now, see this case. यहाँ पर कोई भी चेन नहीं है जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करे. अब एक बात समझते हैं, what is the meaning of stable carbocation? इससे मतलब क्या है हमारा? स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि भाई मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, एज मिनिमम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी देयर. तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है इस पॉजिटिव चार्ज को ऑन द कार्बोकेटाइन. अब हम ये चेक करते हैं कि विच फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अबाउट 4 एग्जाम्पल्स जस्ट टू मिनिमाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. इफ यू पीपल विल फोकस ऑन द फर्स्ट केस, देयर इज nothing will be attached with the carbo atom, right, which minimize the positive charge. But here propyl group, now look at this, propyl group is attached, right, with this carbon, that is the carbon present on the positive charge, means the carbocation, right? And यहाँ पर methyl group is attached, so and here we have a ethyl group attached, right? And we know very well that it shows the maximum plus I effect. This is the plus I group, right? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, दैट विल बी मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज. अगर आपको कहीं से नेगेटिव क्लाउड मिल जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो मिनिमाइज कर देगा पॉजिटिव चार्ज को. तो आउट ऑफ द 4 द सेकेंड वन विल मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज इन द बेटर एक्सटेंट, है ना. बहुत अच्छे से मैग्नीट्यूड इसका मिनिमाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लस आई ग्रुप. और प्लस आई भी हमारे पास ज़बरदस्त तरीके का प्लस आई ग्रुप लगा बिकॉज ऑफ द प्रोपाइल. ठीक है, हमने आपको बताया था कि एज मैक्सिमम द मॉलिक्यूलर मास मोर इंडक्टिव इफेक्ट विल बी देयर. अगर हम बात करें प्रोपाइल ग्रुप की तो बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो किया करता है एज कम्पेयर टू इथाइल ग्रुप, कंपेरेटिवली टू मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पर यही 3 तो केस हैं. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पर इथाइल ग्रुप इज प्रोपोगेटिंग. तो यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा. मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी कहाँ पर है, वो इस सेकेंड वाले कार्बन पर. इस आपको इसे फोकस करना है, राइट? इन चीज़ों को समझिए आप ध्यान से. तो इफ आई हैव टू गिव द आंसर, तो सेकेंड वन विल गिव फास्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आउट ऑफ द 4, राइट? अब सब्स्टिट्यूट क्या होना है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये था इसमें एक्सप्लेन करना कि विच वन विल गिव फास्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड द carbocation, stable carbocation will give the faster substitution. And the stability of carbocation we have learned very well way में कि भाई inductive effect plays a very important role for deciding the carbocation stability. तो यहाँ पर second one will give faster reaction
राइट। अगर मुझे ऑर्डर इनका एक्सप्लेन करना हो तो आउट ऑफ द फोर सेकेंड वन विल गिव द फास्टर, एंड देन हमारे पास D1 एंड देन C, राइट, एंड द लीस्ट वन विल बी A। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मतलब ये B जो है वो सबसे देरी से रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बिकॉज ऑफ दी more stable carbocation, and why the stability takes place because of the more plus I group is attached, right? तो इस तरह से हम थोड़ा सा काम करेंगे। आई होप आपकी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स मूव करते हैं। Okay, so next question we have, which of the following halide is most reactive toward substitution reaction? And the option are ethyl bromide, ethyl chloride, ethyl fluoride and ethyl iodide. And you know very well, we have discussed अभी previous question में भी कि nucleophilic substitution reaction कैसे execute होती है ना? It depends on the formation of the carbocation, right? अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे कि either degree of carbon atom is responsible for the better substitution reaction, और इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर हमने काम किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑल आर दी सेम डिग्री ऑफ कार्बन, राइट। डिग्री ऑफ कार्बन जो है वो सभी में सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री। तो वन फैक्टर तो बिल्कुल हमारा बेकार हो चुका है, इट विल नॉट बी वर्किंग बिकॉज ऑल आर सेम। अगर हम सेकंड फैक्टर पे काम करें जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, दैट वाज नथिंग एल्स बट द मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारा डिग्री ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाता है देन वी हैव टू लुक फॉर द मॉलिक्यूलर मास, बट हियर द मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो सेम। ऑल आर इथाइल ग्रुप, C2H5 ग्रुप है हमारे पास सारे के सारे। तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो चुका है, ठीक। मतलब दैट टू इज नॉट बी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, या कौन अच्छे से देगा हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो काम करते हैं इस पर कि कैसे वर्क करेगा। नाउ सी, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर देखते हैं कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो सारे तो एक जैसे ही हैं, सब तो स्टेबल ही होंगे और एक जैसी स्टेबिलिटी शो करेंगे, बिकॉज इन फर्स्ट केस people will get इथाइल कार्बोकेटाइन, है ना, दिस वन। यहाँ से भी हमें सेम मिलेगा, सेकेंड वाली केस से भी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ विल ऑल्सो गिव द सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट मीन्स ये फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है इसको डिसाइड करने के लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ सी, अगर हम यहाँ से बात करें तो वंस द कार्बोकेटाइन फॉर्म, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयन मिलेगा। एंड इन सेकेंड केस हमें क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ से क्लोराइड आयन मिलेगा। एंड थर्ड केस में people will get, apart from the ethyl carbocation, fluoride ion, and in fourth case we people will get the iodide ion. Actual में these जो ions हैं, halides जो हैं, this plays a very important role for deciding the reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. If in case degree of carbon atom is same and the molecular mass is same, then only we have to go ahead with this halogen atom. ये vary करेंगे और यही rate को influence किया करते हैं। अब हम ज़रा ऐसे समझो, आप ना एक रूम में हो एंड द रूम इज़ वेरी स्मॉल, स्टोर रूम यू कैन कंसीडर, एंड इन दैट रूम वी हैव कुछ 7%। तो क्या होगा, बहुत कंजस्टेड सा होगा, वो 7% जो है उस रूम में बहुत कंजस्टेड होंगे। और इफ़ यू रिक्वायर 1% तो यू कैन ईजिली कॉल दैम एंड ईजिली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक बहुत बड़े हॉल में हो तो वो क्या होगा भाई, वो 7% जो है वो बहुत दूर दूर रहेंगे और आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा, या कुछ भी अगर आपको बुलाना है तो यू हैव टू गो क्लोज टू दैम एंड देन यू हैव टू कॉल। और अगर कैसा हो कि भाई वो एक बहुत बड़े ग्राउंड में है, वो 7%, सेम 7%, राइट, तब काम और डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड का लेवल तो और बड़ा हो गया, आप इजीली उनको नहीं पकड़ पाओगे, आप इजीली उनसे अप्रोच नहीं कर पाओगे। और अगर हम बात करें एक ओलंपिक लेवल के ग्राउंड में और वहाँ पर 7% है तो वहाँ पर तो काम और डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन 7% पे काम करना, ठीक। क्यों, क्योंकि वो तो भाई हमारे हाथ नहीं आने वाले। तो यहाँ पर भी इन पे बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। दैट्स ओनली व्हाई वी हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल कि क्या है, फ्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, फ्लोरीन साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। पॉइंट चार्ज होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे टूवर्ड्स किसके, टूवर्ड्स जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके, और ये आसानी से इसे छोड़ेंगे इन्हें क्योंकि साइज़ में छोटे हैं। बहुत ईजिली इनको क्या चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे, जब तो एक तो इतनी ज़्यादा डिमांड, वो भी एक ही जगह पर, राइट। तो ये इजीली इजेक्शन ऑफ फ्लोराइड आयन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, बिकॉज ये साइज में बहुत छोटा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह पर फोकस्ड है, ठीक है। और दैट टू इज को सेंटर, और फिर वो भी मोर डेंस
वाले फॉर्म में, राइट। और अगर हम इसके बनिस्बत इसकी बात करें क्लोराइड की, तो क्लोराइड कैसा भी लिटिल बिट लार्ज है साइज में इसके कंपैरेटिवली, और लार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स है, तो थोड़ा सा लिटिल लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर फील होगा इन बिटवीन। तो मतलब द इजेक्शन ऑफ क्लोराइड इज easily possible as compared to fluoride because of the larger size and electron are dispersed a little bit far from as compared to fluoride one। तो इसका इजेक्शन पॉसिबल है इसकी कंपैरेटिवली a little easy way में। और अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो साइज और एनलार्ज हो जाता है, मतलब वो आसानी से जा सकते हैं, इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और ये आयोडाइड की बात करें तो भाई ओलंपिक लेवल ग्राउंड की हमने बात कर ली, इतनी दूर दूर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या इज इट पॉसिबल कि इन पर एक अच्छा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे? नो। तो बेटर लीविंग ग्रुप, easy the formation of carbocation, and as easy the formation of carbocation takes place, the nucleophilic substitution will go ahead, राइट। ये बिल्कुल इतनी सी बात थी। मतलब जहाँ डिग्री ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, जहाँ मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, तब आपको क्या देखना है? यू हैव टू फोकस ऑन दी किस पर? हैलाइड्स पर। अगर हैलाइड्स डिफरेंट हैं देन वी हैव टू गिव द आंसर ऑन दी बेटर लिविंग ग्रुप, कि कौन ईजिली लिविंग ग्रुप या इजेक्शन टेक्स प्लेस कर पाता है यहाँ से। तो बेटर लिविंग ग्रुप आउट ऑफ द 4 कौन है हमारे पास? आयोडाइड आयन इज द बेटर लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा, इजीली छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? बिकॉज साइज में लार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स है, बहुत दूर दूर है, इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, अच्छा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा बिटवीन द कार्बोकेटायन एंड द आयोडाइड आयन। तो बेटर लिविंग ग्रुप मतलब ईजी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ईजी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट मीन्स फास्टर रिएक्शन विल बी देयर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इस तरह से हमें कुछ काम करना है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इफ आई हैव टू गिव द ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी आउट ऑफ द 4, तो डी विल बी गिविंग द फास्टेस्ट रिएक्शन, देन उसके बाद ए, और फिर हमारे पास हो जाएगा देन बी, एंड द लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा, दैट वाज सी। वाई सी? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोराइड विच मेक इट वेरी डिफिकल्ट लिविंग ग्रुप, है ना। जब ये आसानी से लीव नहीं कर पाएगा तो हमें भाई फास्ट रिएक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द लेस formation of the carbocation, right? इतना clear आपको? Okay, now third question, we have a very interesting question that is nothing else but in this question they have asked arrange increasing order of the following in their basic strength, right? हमें बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, एंड द ऑप्शंस आर अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, 3 डिग्री अमाइन वी हैव, 2 डिग्री अमाइन एंड 1 डिग्री अमाइन वी हैव, राइट। यहाँ पर H is missing, राइट, twice H, राइट। तो दिस द क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक, तभी हम उनको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो बेसिक क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लुईस, ध्यान से समझिएगा, any species or the atom or the group of atom that having the tendency to donate the lone pair of electron, तो that will be considered a base। according to Lewis वो base है, ठीक है, एंड विल बी कंसीडर एज लुईस बेस। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा उसी को डिस्कस करेंगे कि विच इज मोर बेसिक इन नेचर, एंड द क्वेश्चन विल बी कमिंग इन सच अ वे ऑल्सो दैट इफ यू हैव टू रिएक्ट विद एनी, सपोज आई हैव HCl एंड द क्वेश्चन विल बी कमिंग इन दिस वे टू कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन विद HCl। तो ऑब्वियसली बात है HCl एक गुड एसिड है, एंड एसिड से बेस बहुत रैपिडली रिएक्ट किया करते हैं, राइट। तो बेस जो अच्छा बेस होगा दैट विल बी आउट ऑफ द 4 विच विल गिव फास्टर रिएक्शन with HCl2। तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंफर्म करनी है, नॉट इवन HCl, they can give us a more complicated acid too। तो according to the competition level the question will be more difficult, but the basic concept is this कि which one will give the faster reaction with acid or which is more basic in nature, obviously बात है that one will give the faster reaction with acid। तो इस पे काम करता है। ये हमने समझा कि अकॉर्डिंग टू द लुईस लोन पेयर डोनर विल बी अ गुड बेस, है ना। अब लोन पेयर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सभी के पास है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन को अगर मैं थोड़े से इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करूँ, ये कुछ ऐसा सा है हमारे पास, है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ इस सेकंड वाली केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में हमारे पास क्या बन रहा है भाई, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी है, और ये CH3 ग्रुप है। यहाँ पर ये तीनों जगह पर H को सब्स्टिट्यूट किया गया है विद CH3 ग्रुप। और अगर हम थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस में भी हमारे पास कुछ ऐसा सा ही है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एक CH3 हमारे पास है, दूसरा CH3 भी है, और थर्ड वन जो है वो H है, राइट। और अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो इन फोर्थ केस 2 अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो समथिंग कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर में मिलेगा कि हमारे पास एक CH3 है, लोन पेयर अवेलेबल है, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास है।
ये कुछ इट्स नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बेसिक सा हिंट कि कैसे काम करना है। हमें पता है कि बेस वो होंगे जिन पे लोन पेयर होगा। अब लोन पेयर तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अब हम फोकस करेंगे विच इज़ हैविंग द बेटर टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, है ना, ओवर इट्सल्फ। तो इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेंगे, राइट। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर ये लोन पेयर अवेलेबल है, फाइन। अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंपैरेटिवली बात करूँ तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड कराएगा बट नॉट इन सच एक्सटेंट। और यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप, एंड आई टोल्ड यू CH3 ग्रुप कैसे होते हैं, CH3 ग्रुप प्लस आई ग्रुप हुआ करते हैं। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने की टेंडेंसी रखा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएंगे, मतलब वंस तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन आइटम एंड द CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं एंड दैट टू इज इन मोर क्वांटिटी, है ना। तीन हमारे पास मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और बहुत अच्छे से प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे विच इनहेंस द लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन द नाइट्रोजन आइटम। बहुत जबरदस्त लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन आइटम विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स ईजी बी मतलब अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और नाइट्रोजन आइटम मोर क्लाउड विल बी देयर, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा नाइट्रोजन आइटम दैट विल बी अ गुड बेस। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल ग्रुप है, एंड दैट इज ऑल्सो शोइंग द प्लस आई इफेक्ट बट नॉट इन सच एक्सटेंट द in case of B बिकॉज वहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप थे। इन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट शो किया जा रहा है बट नॉट इन सच एन एक्सटेंट एज कम्पेयर टू बी बिकॉज ऑफ ओनली 1 मिथाइल ग्रुप। तो अगर मैं बात करूँगा आउट ऑफ द 4 विच इज़ मोर बेसिक इन नेचर, तो आपको बात अब तक समझ आ गई होगी कि बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट मोर गुड क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ बी विल शो द मोर बेसिक कैरेक्टर, और वी कैन कंक्लूड कि इट विल गिव द फास्टर रिएक्शन विद एनी काइंड ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ द मोर बेसिक इन नेचर, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन द नाइट्रोजन आइटम विल इनहेंस बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। और अगर हमें किसी ऑर्डर में इनको अरेंज करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि भाई बी विल बी मोर बेसिक आउट ऑफ द 4 एंड आफ्टर दैट हमारे पास है सी फॉलोड बाय डी एंड देन लीच वन विल बी ए, है ना। और ये ऑर्डर हमने किस बिहाफ पर इसको कंक्लूड किया, हमने इसको कंक्लूड किया इंडक्टिव बेस के बिहाफ पर, इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम बेस मानकर के इस पर काम करें तो लुईस बेस वो होता है जो लोन पर प्रोवाइड कराता है, और इस तरह से हम इसको कंक्लूड करेंगे। आई होप बात क्लियर है आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर। इसे समझते हैं कि कौन हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ऑप्शंस आर, ये कुछ हमें साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है ना, ये इस तरह से अटैच है हमारे पास COOH से। अगर हम इसको मोर सिंपल कर दें और इसे समझें तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप इज अटैच ऑन दी COOH ग्रुप, राइट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और यहाँ पर अगर हम समझें तो ये कुछ सा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप अटैच्ड है हमारे पास COOH ग्रुप से। और सिमिलरली यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इज अटैच विद द COOH ग्रुप। अब हम ये समझते हैं कि एसिडिक क्या होता है। तो एज आई टोल्ड यू, एसिड्स आर दोज विच कैन ईजिली गिव अस द हाइड्रोजन आयन, है ना, जो ईजिली प्रोजेक्शन प्रोवाइड करा पाते हैं हमें हाइड्रोजन आयन, वो हमारे पास अच्छा एसिड होता है। एंड वी नो वेरी वेल दैट द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ गुड एसिड, व्हाई, बिकॉज ऑफ द easily we people can get the hydrogen ion. अब as easy the rejection of hydrogen takes place, we people will get the H positive ion very easily और very rapidly. अब हम देखते हैं कि कौन से इफेक्ट हैं जो इस हाइड्रोजन आयन को रोके हुए है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और वो क्या है, वो है ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन आइटम। एंड पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन आइटम दैट टू पोजेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड रहा करता है। अगर बात करें कोई भी इसके साथ कनेक्टेड ग्रुप की, तो इफ अ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप काइंड ऑफ कनेक्टेड इज देयर विद द COOH ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करा देंगे, दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी देयर ऑन द ऑक्सीजन आइटम, दैट विच मीन्स द हाइड्रोजन आइटम रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आइटम वेरी डिफिकल्ट, है ना, बिकॉज एज in more magnitude of the electron cloud will be increasing on the oxygen atom, difficult will be the removal of hydrogen atom. Injection easily नहीं हो पाएगा and we people will not get the hydrogen ion very rapidly, और जितना difficult होगा hydrogen ion का removal होना उतना ही ख़राब acid हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसी behalf पे काम करेंगे and you know very well बाकी सारा ग्रुप तो इस सेम सभी में कार्बोक्सिल ग्रुप है, that means हमें चेक क्या करना है, जो इसके साथ कनेक्टेड चेन है that वेरी कर रही है ना, वो वेरी कर रही है। यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ ब्यूटाइल है, पेंटाइल और हेक्साइल ग्रुप इज कनेक्टेड। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन दैट द इंडक्टिव ग्रुप, जब इंडक्टिव फैक्ट को हमने समझा था डिटेल में,
कि आउट ऑफ द फोर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, राइट, इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी भी, मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, यहाँ 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है। तो आउट ऑफ द 4 अगर मैं बात करूँ तो साइक्लोहेक्साइल जो है बहुत अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट शो किया करता है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, एज कम्पेयर टू द साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, ठीक, इसके कंपैरेटिवली। और ये इससे लेस इफेक्ट शो किया करता है कौन, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, और लेस इफेक्ट हमें मिला करता है साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप्स के थ्रू, ठीक। तो ये कुछ कुछ सा हमारा इफेक्ट है। तो अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छे से मैग्नीट्यूड क्रिएट कराएगा ऑन दी ऑक्सीजन एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा करते हैं। तो बेटर टेंडेंसी, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी डेवलप ऑन दी ऑक्सीजन एटम विच मेक डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ एच, एंड एज डिफिकल्ट द रिमूवल ऑफ एच टेक्स प्लेस, वीक एसिड विल बी देयर। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, जहाँ पर सबसे मिनिमम प्लस आई इफेक्ट होगा। और आउट ऑफ द 4 मिनिमम प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर है भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में, इस जगह पर मिनिमम प्लस आई इफेक्ट इम्प्लीमेंटेड है। मिनिमम प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होगा, और आउट ऑफ द 4 सबसे ज़्यादा ईजिली हाइड्रोजन आयन हमें फर्स्ट केस से मिलेगा। अगर हम एक ऑर्डर में इसको अरेंज करें, इनफैक्ट दीज आर अरेंजिंग इन अ ऑर्डर ओनली, तो ए विल बी द वेरी बेस्ट एसिड एज कम्पेयर टू द B1, कंपैरेटिवली C एंड फॉलोड बाय D। ये हमारे पास इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। एक अच्छा एसिड है, क्यों, क्योंकि इजी रिमूवल ऑफ H विल टेक्स प्लेस। वाई इजी रिमूवल, बिकॉज ऑफ नॉट मच मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी देयर ऑन द ऑक्सीजन एटम एज कम्पेयर टू द अदर। वाई नॉट मच मोर, बिकॉज ऑफ द लेस इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस हुआ है, यहाँ पर और ज़्यादा तरीके से इन्हेंस हुआ है, और यहाँ पर तो बहुत अच्छे वाला, बिकॉज ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर मास, साइड चेन इज कनेक्टेड यहाँ पर, राइट। तो कुछ कुछ इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। अब यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद NaOH या फिर सोडियम एटम के साथ, तो आउट ऑफ द 4 विच वन विल गिव फास्ट रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, सोडियम एटम या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एनी बेस विल गिव फास्ट रिएक्शन विद एसिड, एंड विच वन विल बी द आउट ऑफ द 4 विच वन विल बी द बेस्ट एसिड विल गिव द फास्ट रिएक्शन। आई होप बातें क्लियर है, आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। Okay, so we have next question, which one will react faster with a hydroxide ion, right? So hydroxide ion से fast reaction वही देखा भाई, which is more stable carbocation। तो यहाँ पर फिर से stability पर बात आ जाती है, stable carbocation will give faster reaction। तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। नाउ देखते हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है। मिनिमम है ना, हमने इसको समझा था मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी हाई हो जाएगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस चीज़ के, ठीक। मिनिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी विल बी देयर, ठीक। इसे हमने समझा था। अब जरा चेक करते हैं आउट ऑफ द ऑल कि कौन मिनिमम स्टेबिलिटी शो किया करता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन पर एक हेक्साइल ग्रुप कनेक्टेड है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप कनेक्टेड है, और साइक्लोहेक्साइल एज आई टोल्ड यू प्लस आई इफेक्ट शो किया करते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी साइक्लो ग्रुप है और यहाँ पर भी साइक्लो ग्रुप। बट द चेंज इज दिस कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड, एंड यू नो वेरी वेल मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, है ना। तो होता क्या है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट लगने लगता है बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप दैट मिनिमाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का चार्ज जो है, वो मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, राइट। और अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ थर्ड में नाइट्रो ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने टुवर्ड्स मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल इनहेंस, पॉजिटिव चार्ज का पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो लेस स्टेबल बन जाएगा। तो इफ आई टॉक अबाउट विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन विद OH या हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन विल गिव द फास्टर रिएक्शन, एंड आउट ऑफ द 3 द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी द B1। वाई, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर आ रहा है इस कार्बोकेटाइन को मिनिमाइज करने के, इसके मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करने के लिए। आई हैव टू गिव द ऑर्डर आउट ऑफ द 3 which one will give faster and the least one, तो B1 will give the faster reaction with hydroxide। और अगर हम least one की बात करें तो यहाँ पर माइनस इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंड्यूस हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएंगे, तो इसलिए सी जो है वो हमारा लीस्ट वन होगा, और जो सेंटर में रहेगा वो कौन होगा, बिना किसी ग्रुप के A1। तो ये हमारे पास कुछ कुछ सा ऑर्डर हो जाता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आई होप बात क्लियर है, आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है एंड वी हैव डन इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार, तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Okay, so far we have done few question. Now you have to practice with some question. Hardly we have discussed 5 question today, and that too is very important. If you people will keep practicing with these question, you will be cope up with the problem related with the inductive fact, hopefully, right? So we will discuss few more important question based on the inductive fact only in our next video. Till then, keep practicing. Hope video will be helpful for you people, and have a nice day, right? And keep writing your feedback. Thank you.